پروگرام ہم لوگ میزبان احمد عمران خان حاضر خدمت ہے. خواتین و حضرات، جیسے کہ میرے پیچھے تاریخی عمارت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں اس وقت موجود ہوں فیصل آباد میں، جہاں پہ ایک عجیب و غریب قسم کی دکھ دائق اور دلچسپ خبر نے جنم لیا. ایک طرف تو ایک غریب ماں نے اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی اولاد کو کسی دوسرے کی جھولی میں ڈال دیا، دوسری طرف ایک شخص کی اپنی ہی بیوی 9 ماہ تک اپنے شوہر کو بے وقوف بناتی رہی کہ وہ اس کے بچے سے حاملہ ہے اور اس نے اس کے بچے کو جنم دیا ہے. یہ کہانی کیا ہے جو کہ فیصل آباد کے اندر جنم لیا جس نے، اور وہ کون سے محرکات تھے جن کی وجہ سے ایک ماں کو اپنی مامتا کا خون کر کے اپنی پیدا کی ہوئی بیٹی کو کسی اور کی جھولی میں ڈالنا پڑا. آج کے پروگرام میں اسی کو ریویل کرنے کی کوشش کریں گے اور حقائق آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے سماج، ہمارے سسٹم اور ہماری سویلائزیشن میں وہ کہاں کہاں پہ کون کون سے نقائص ہیں جن کی وجہ سے آج غریب ماں کی مامتا اس حد تک چلی گئی کہ وہ اپنی اولاد کو دان کرنے پہ مجبور ہو گئی. فیصل آباد میں جنم لینے والی اس نیوز سٹوری کو سما کے رپورٹر خرم شہزاد نے کس طرح رپورٹ کیا، آپ بھی ملاحظہ کیجئے. خرم، آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا یہ واقعہ کیا تھا اور کس طرح سے رپورٹ کیا گیا پولیس اسٹیشن میں؟ جو رفیہ نامی خاتون ہے جس کو 20 سال قبل اس کی پہلے شادی ہوئی، تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس تانوں کا شکار تھا، خاندان کی طرف سے تانے ملتے تھے. اور اس کا خاوند جو ہے اسلم، وہ سعودی عرب میں اچھا ایک کاروبار کر رہا تھا، دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اولاد نہیں تھی. تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ فیصل آباد میں آ کر یہاں پر اپنی بہن سے مل کے بچہ اڈاپٹ کیا جائے. اڈاپشن یہاں تک تو ہوئی کہ ایک انہوں نے فیملی تلاش کی جس میں صدف نامی خاتون ہے، وہ رضامند ہوگی کہ وہ بچہ دے گی. بچے کے جو ایک معصوم بچے کی قیمت لگائی گئی وہ صرف 40,000 روپے. ایک اہم بات جو میں اس میں آپ کو بتاؤں، جو اسلم ہے، جو رفیہ کا خاوند ہے، اس کو اس تمام تر چیز سے اس کو بتایا نہیں گیا، اس کو لا علم جو ہے رکھا گیا. جو سعودی عرب میں تھا اس کو لا علم رکھا گیا. اس کو یہ بتایا گیا کہ اس کے گھر امید ہوئی ہے، بچہ ہونے والا ہے، لیکن اس کے پیچھے بچے کی ڈیلیوری کے بعد پاکستان آیا. وہ ڈیلیوری سے پہلے آیا لیکن وہ رحیم یار خان میں تھا. یہاں پر فیصل آباد کیونکہ رفیہ کی بہن رہتی تھی، ان دونوں نے اس معاملے کو طے کیا جو ہے صدف کے ساتھ. اسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا. اسلم جب آیا اس کو پتہ لگا کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اس نے یہاں پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا. محلے میں مٹھائی بھی بانٹی گئی، عزیز و کاروں کو بھی بتایا گیا. پولیس کے پاس آیا. ہاں، پھر ہوا یہ کہ جب اس کی وائف نے، اسلم کی وائف نے یہ اطلاع دی کہ کچھ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار آئے ہیں، ایک خاتون تھی اور ایک مرد، وہ بچی کو زبردستی ان سے چھین کر لے گئے. تو اس کے اوپر اسلم جو ہے وہ تھانہ رضا آباد آیا. یہاں پر اس نے اغوا، چھیننے اور اغوا کی جو ہے FIR درج کروائی. ناظرین، اس کیس کے انچارج انویسٹیگیشن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. طاہر شاہ صاحب. طاہر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا بنیادی طور پہ کیا چیز آپ کے سامنے آئی، اور پرچہ درج ہونے کے بعد جب آپ نے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا تو اس میں سے کیا نکلا؟ جب انہوں نے تقریباً 1:30 بجے تھانے میں آ کر اطلاع دی ہے نا کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، تو 11:30 بجے کا وقوع ہے. اسی وقت ہی کچھ ڈاؤٹ ہوا تھا. پھر ہم نے جو لڑکے اپنا اس کی بیوی سی مدعی کی رفت، اس سے بات کی تو اس کے حالات واقع سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے بچہ ہوا ہی نہیں ہے. لیکن وہ ہسپتال اور دائی کا نام لیتی تھی. 17 سال سے ادھر خاوند کے پاس رہ رہی ہے، اس کے پاس اولاد نہیں تھی. ادھر جو صدف نامی عورت تھی نا آگے، تو اس کی ایک بہن ہے رفت، اس نے کہا کہ ہم تم کو ایک بچی اڈاپٹ کر دیں گے، آپ آ جائیں. 3 ماہ سے وہ سعودی عرب سے ادھر آئی ہوئی تھی. ادھر جب بچی کی پیدائش ہوئی تو وہ فوراً اس کے گھر گئی، اس کو اٹھا کر لے آئی. آ کر اپنے خاوند کو کہا کہ میرے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے. خاوند اس کا انتہائی شریف آدمی ہے. دراصل اس کے پیٹ میں کوئی چھوٹی سی رسولی تھی جس کی وجہ سے پتہ چلتا تھا کہ اس کو شاید حمل ہوا ہے. لیکن جب ہم ادھر موقع پہ گئے، اس کو بتایا بھی ادھر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ رونے لگ پڑتی اور ویسے کرتی. تو حالات واقعہ سے پتہ چل رہا تھا بھی یہ جھوٹ بول رہی ہے. دائی کا نام پوچھا، وہ اس نے بتایا، لیکن اس کا گھر نہیں بتا رہی تھی. شاہ صاحب، اسلم کا کیا ری ایکشن تھا جب اس سے یہ ساری سٹوری
रिवील की गई उसके सामने? जब हमने ये बच्ची जो इन्होंने उसने सदफ ने फरोख्त की थी, इसकी बीवी ने ली थी, उसको बरामद कर लिया, तो इसको भी असलम को मदई मुकदमा को हम साथ लेकर थाने आ गए। फिर इसको सारी बात जब बताई तो ये तो हैरान रह गया, उसकी बीवी भी रोने लगी कि आज ये मुझे कन्फर्म तलाक देगा। शाह साहब, असलम ने जो आपको एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन के तनाजुल में कौन कौन सी दफात लगाई गई? जो बेसिकली इन्होंने दरख्वास्त दी वो तो सिर्फ बच्चे गवाह थी, किडनैप की थी, 363 लगा था। अब उसके साथ हमने कुछ स्पेशल आर्डीनेंस है बच्चों की खरीदो फरोख्त का, 2002 आर्डीनेंस है, वो याद किया साथ। नायक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। हाजियों की खिदमत करके दिल का सुकून कमाने वाला एक शख्स हाजी मोहम्मद असलम अपनी बीवी की फरमाइश पर तावीज़ गंडों के लिए फैसलाबाद आन पहुंचा। इस इंसानी बच्चे की तिजारत का मरकज एक साईं बाबा का आस्ताना ही बना। फैसलाबाद, जहां उसकी बीवी और उसकी किस्मत उसके साथ इंतहाई भौंडा मजाक करने वाली थी, जिसको शायद वो अपनी रहती जिंदगी कभी फरामोश ना कर सके। ये बताइएगा, तफ्तीशी अफसर ने हमें बताया कि आपको भी इस सारे मामले का नहीं पता था और आपको आपकी बेगम ने बताया कि वो हामला हैं जी। उसकी क्या वजह थी? उनके ऊपर इतना शदीद प्रेशर किस चीज़ का था कि आपसे झूठ बोलना पड़ा उन्हें? कोई प्रेशर नहीं था, मैं पहले बिल्कुल ठीक ठाक था। 2 साल पहले 2 साल मैं उसको पहले बोला कि मेरे बच्चे नहीं है, मैं शादी और करूँगा। जब मैं बीमार हो गया तो मैं उसको बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। फिर आपकी बीवी, वो कौन से उसके सर पे कौन सा खौफ तारी था जिसके तहत उसने इंसानी बच्चे की तिजारत की, इंसानी बच्चे को खरीदने की कोशिश की? नहीं, खरीदने की कोशिश उसने नहीं की। ये खुद उसकी जो माँ थी ना बच्ची की, वो उसने खुद ने, अभी मेरे को तो अभी पता चला कि उसने फ़ोन हमारे को उधर से किया। हम खानपुर में थे, उधर फ़ोन किया कि वो बीवी मेरी बोलती है चलो जल्दी करो, मेरी तबीयत ख़राब होगी, उधर फैसलाबाद चलते हैं। वो जैसे हमने तवीज़ लिया, वो बोलता है कि अपने घर में ये छिला नहीं करना। चलो मैं फिर उसके साथ ही आ गया। मैं उस दिन दवाई लेने गया तो ये घर में नहीं थी। मैंने फ़ोन किया, बोलते बच्ची पैदा हुई है तो हम 10 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा असलम साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आपकी बीवी ने आपसे कहा कि वो हामला है, 9 महीने ये वक्त गुजरा, ये सारा का सारा मामला आपके साथ होता रहा, इतना बड़ा ड्रामा आपके साथ होता रहा। आप माशाल्लाह बारिश आदमी हैं, मुल्क से बाहर आपका बहुत वक्त गुजरा है, मुशाहिदा आपका सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इंटरनेशनल है। आपको बेवकूफ़ किस तरह से बनाया गया? पता नहीं यार, मैं तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूँ। लेकिन इतना भी क्या सीधा साधा कि एक घर के अंदर शौहर के साथ, घर के मालिक के साथ इतना बड़ा ड्रामा हो जाए और उसको बिल्कुल भिनक भी ना पड़े? यार देख लो, अभी जब मेरे को इतनी खबर होती तो मैं इधर थाने में आता। ज़रा सोच के बताइएगा, एक औरत जिसके साथ आप कई सालों से रह रहे हैं, वो क्या उसका कोई दिमागी खलल है? वो नफसियाती प्रेशर में थी, उसको मोहल्लेदारों का, ससुरालियों का, शौहर के ताने का इतना खौफ था, उसने ये मकर, ये ड्रामा क्यों किया? किसी का उसको खौफ नहीं था, बस बच्चों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हमें पता लगा जब आपको ये इतला मिली कि आपके घर बेटी हुई है तो आपने मिठाई भी तकसीम की, खुशियाँ भी मनाई? जी बिल्कुल। और कुछ दिनों के बाद ये फिर कितने दिनों के बाद आपको पता लगा कि वो बच्ची आपकी नहीं है? मेरे को आज पता चला। आज पता लगा, 6 दिन के बाद। क्या कैफियत है 6 दिन के लिए? एक शख्स जिसने कई साल इंतज़ार किया बाप बनने के लिए, 6 दिन के लिए वो इस कैफियत में रहा कि मुझे भी अल्लाह ने औलाद का तोहफा दिया, और आज आपको पता लगा कि वो औलाद आपकी नहीं थी। मेरे को इतनी क्या है कि मेरे इधर जानने वाले बहुत ज़्यादा हैं पूरे पाकिस्तान में। उधर जो भी आता है, जितनी मेरे से खिदमत होती है मैं उन लोगों की करता हूँ। ये नहीं बोलता कि मैं लाखों के मैं बोलता हूँ मेरे कौन से बच्चे हैं जो कमाता हूँ, चलो भाई। उसके अलावा आपने अपने ख़ानदान में भी इस खबर की अशात की होगी, इस खबर को फैलाया होगा। मदीने पाक में भी खबर दी कि हमारे घर बेटी पैदा।
असलम साहब, वो 6 दिन वो बच्ची आपके साथ रही, 6 दिन यकीनन आपने बाप की हैसियत से उसको प्यार भी किया होगा और बहुत सारी जो आपके दिल के अरमान थे वो भी आपने पूरे किए होंगे। हाँ जी बिल्कुल किए। तो क्या उसकी 6 दिन की जो वक्त गुजरा उसका आपकी बीवी के साथ और आपके साथ, वो कैसा महसूस किया आपने? बिल्कुल अच्छा महसूस किया मैंने, बोला बहुत अच्छी बच्ची है। जब थोड़ी सी रोती भी नहीं थी बच्ची, मैंने जाके देखो उसके खिलौने लेकर आया, उसके लिए कपड़े लेकर आया और दूध पेपर वगैरह ये जैसे होता है बच्चों के, सारा सामान लेकर आया। असलम साहब, अब वो खिलौने जो आप लेके आए उनको कौन इस्तेमाल करेगा? क्या करेगा, उधर फेंक देंगे, क्या किसी बच्चों वालों को दे देंगे, क्या करें। आपने इस मुकदमे के अंदर अपनी बीवी, अपनी जौजा और उसके अलावा 3 खवातीन को नामजद किया है, तो वो भी आपकी बीवी भी हवालात में? जी बिल्कुल। आप क्या इस उसमें केस में से अपनी बीवी को विड्रॉ नहीं करेंगे या आप चाहेंगे कि उसको भी सज़ा मिले? नहीं तो सबको बेशक अल्लाह से मांगूंगा बस। अल्लाह जो अल्लाह करता है ना, वो मैं अल्लाह को काफ़ी समझता हूँ, ये नहीं मैं सबको माफ़ कर दूँगा। तो वो जो बच्ची है जो 5-6 दिन आपके पास रही, आप उसको लेना चाहेंगे, उसको अडॉप्ट करना चाहेंगे? नहीं, वो अल्लाह ताला दे तो अपने ख़जाने से दे। जो वो उसकी माँ बोलती है नहीं हम नहीं देंगे, वो रोती थी मेरे पाँव, वो भी पाँव पड़ती थी, भाई गलती मेरी है सारी, मैंने खुद उसको बुलाया खुद देने के लिए। आपकी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए, कानून होना चाहिए जिसके तहत जो बे औलाद लोग हैं उनको भी औलाद मिल जाए और जो गरीब हैं जिनसे कि अपनी औलाद पाली नहीं जा रही उनका भी कुछ बोझ हल्का हो जाए? होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। जिनसे अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाया जाता, वो जिनके बच्चे नहीं हैं उनको देने चाहिए। आज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। ख़वातीन और हज़रात, आपने इस मुकदमे के मुद्दई हाजी मोहम्मद असलम का बयान सुना और अब आपको उन मुलजमान से उनकी बात करवाते हैं आपकी, जिन्होंने हाजी साहब को बेवकूफ़ बनाया 9 महीने तक, और अब किस स्टेट ऑफ माइंड में है और उनका मौक़िफ़ क्या है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद थाना कोतवाली में, जहाँ पे बच्चे की खरीदो फरोख्त के हवाले से इस मुकदमे में गिरफ्तार की जाने वाली ख़वातीन मौजूद हैं, हवालात में हैं। उनसे बात करते हैं। राफिया बीबी, जिन्होंने 40,000 रुपये की एवज़ एक बच्चे को ख़रीदा, ये क्या डील थी, ये मंसूबा उनके जहन में कैसे आया, उन्हीं से पूछते हैं। बच्चा ख़रीदने का जो आइडिया था ये आपके जहन में किस तरह से आया? ना खरीदा ना इन्होंने बेचा। मैंने इस बच्चे को सिर्फ इन्होंने कहा कि मैंने बच्चा देना है, मैं गरीब हूँ नहीं पाल सकती। मैंने लिया, मैंने दूध पानी का खर्चा दिया इसको, मैंने ऐसे ये बेचने की कीमत नहीं लगाई। अच्छा, कीमत नहीं लगाई? नहीं। 9 महीने आप अपने शौहर को, हाजी मोहम्मद असलम को बेवकूफ़ बनाती रहीं। ये इसको मुमकिन कैसे बनाया आपने? एक अच्छा भला बाशऊर आदमी आपके साथ रहता हुआ वो आपको हामला समझता रहा जबकि आप नहीं थी। कोई बेवकूफ़ नहीं बनाया, ना वो बेवकूफ़ है, ठीक है। उसको वैसे ही उसको पता ही नहीं चला कि उसको तबीयत ख़राब थी, बीमार रहता था, उसको इतनी होश ही नहीं थी कि मैं इसको ये हमला है या नहीं, बस यही मेरी बात। अच्छा, ये बीबी बात सुनिए, आपका नाम क्या है? सदफ, ये बच्चे का क्या हुआ था, डील हुई थी, क्या मामला तय पाया था? बिल्कुल गलत बयान है कि डील हुई थी या ये हुई थी, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। मेरे 2 बच्चे पहले थे, फिर बच्ची होने वाली थी। मैंने कहा चल मैं दे दूंगी ना, खैर ये बच्ची मांग रही थी ना, मैंने कहा ले लो। खर्चा पानी उसने कहा कि आप छिला हो गया, केस हो गया, आप दूध पी लो, गेहूँ खा लो, इस वास्ते पैसे देते। ये झूठ है सरासर, हम पे इल्ज़ाम है। फिर मैंने उसको बच्ची दे दी। फिर मैं 3 दिन सदमे में रही। फिर मैं बाजी के पास गई, मैंने कहा आपकी मिन्नत वाली बात, आप मुझे बच्चा वापस दे दो, मैं नहीं रह सकती।
सदफ, अगर आपने और वो दूसरी खातून ने कोई जुर्म नहीं किया तो ये सलाखों के पीछे आप क्यों हैं? ये पता नहीं गलत बयानी करके ना किसी ने वैसे ही गलत ये किया कि खरीद फरोख्त का इन्होंने केस बनाया। पहले इन्होंने अफगाह का पर्चा दिया था जब मैं बच्ची ले गई। सदफ, ये अब जो सूरत हाल बनी है बड़ी कन्फ्यूजन सी है, या तो इसमें आप झूठ बोल रही हैं या वो मुद्दई हाजी मोहम्मद असलम जिसने मुकदमा दर्ज कराया। वो तो जो एक कह रहे हैं ना कि उन लोगों ने हमारी बच्ची अफगाह कर ली है, ये मेरी बच्ची है, मैं ले आई है, मैं सारी दुनिया के सामने कह रही हूँ मैंने अफगाह नहीं की है। ये बताइए कि वो कौन से अवामिल थे, वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से आपने इतना सख्त फैसला किया? मैं बस परेशान हो गई, घबरा गई, मैंने कहा 3 बेटियाँ होगी और कोई बात नहीं। आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शौहर मेहनत मजदूरी करते थे। उनसे जब आपने कहा कि मैं अपनी बच्ची को देना चाहती हूँ किसी को, तो उन्होंने क्या कहा? वो जिस दिन मैं दे रही थी उस दिन भी मुझे मना कर रहे थे कि आप ना दो, तो कोई नहीं, इसके नसीब पर भी अल्लाह ताला ने मुझे दे देना। ये कब आपने फैसला किया कि नहीं आप इस बच्ची के बगैर नहीं रह सकती और ये बच्ची जो आपने डोनेट की थी ये वापस लेंगी? जिस रात ले गए ना, बीबी, ये आपको पता है आपका शौहर जो है उसने पर्चा ये दर्ज करवाया आपके मुझे खिलाफ, सब पता है। तो आप उसको क्यों रोक रही हैं बात करने से? इमरान के दिमाग में शैतानी तरकीब डालने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ ही थी। जिन माशरों में जहालत का राज हो वहाँ ऐसी माएँ ही जन्म लेती हैं जो शऊर से दूर इंसान को एक जानवर बना देती हैं। और ऐसी ही माओं की तरबियत ने हमारे माशरे को इल्म से लाखों मील दूर ले जा फेंका है। बीबी, आपका क्या लेना देना है इस बारे में? मेरी नो आ मेरी मजबूरी तो कहते सी भी भाई कुड़ियां वा असीं कित्थे लई फिरांगे, किद्दां इन्हां दा खर्चा अदा करांगे, फलाना करांगे टमकाना। मुड़ के बेहोश हो डिगण लग गई, बेड़े च डिग गई, सारा महला साडा गवाह है इस गल दा। 11 बाई आई लैके गई कुड़ी नूं, फिर उन्होंने ने कहा भी भाई इहदी हालत बहुत ज़्यादा खराब है तो तुसीं जो इन्हें परेशानी ओहदी पूरी कर दो। आपका जुर्म आपकी गुर्बत बनी? गुरबत ही है पुत, ये गुरबत है जिहड़ा इत्थे बैठे। कभी इससे पहले हवालात में आई आप? नहीं, असीं नहीं आए पूरी जिंदगी च, ना अल्लाह पाक किसी बारी दुश्मन नूं लैके। अच्छा, अगर आप औलाद नहीं अल्लाह आपको दे रहा, मेरे 2 बच्चे हुए, दोनों ज़ाया हो गए थे। उसके बाद इन्होंने बच्चे का नाम लिया, किसी ने मुझे बताया वो बच्चा दे रही, मैं लालच में आ गई। मैंने कहा चलो मेरा मियाँ सुबह काम पे चला जाता है, मेरी रौनक बन जाएगी, मैं घर में जब देगा अल्लाह तब तो है, तो मैं ले लेती हूँ। बाजी ने मुझे फ़ोन कर करके इतना कर दिया मजबूर के बच्ची ले जा। मैंने पैदा हुई बच्ची, बहन ने मजबूर किया आपको? इसने मैंने 2 दिन बाद फोन किया, मैंने कहा ले जाओ आप बच्ची, कोई नहीं ले लो। हाजी असलम को एतमाद में लेके, अपने शौहर को एतमाद में लेके करती हैं ये सारी की सारी डील। तो आप नहीं समझती आज की रात आपके हवालात में ना गुजर? मेरा शोहर किसी का बच्चा नहीं लेता, इस वजह से ये सारा आपने ड्रामा जो है प्लॉट इसलिए किया। मैंने झूठ बोल दिया बस, और कोई वजह नहीं है। अब आपकी अपने शौहर से बात और मुलाकात हुई सारे मुद्दे के बाद, जब ये खुल गया? मेरे साथ रहा, कुछ नहीं वो बहुत नेक और अच्छा इंसान है, दिल का साफ है। जिस दौलत से आप महरूम रही, क्या हुकूमत से कोई आपकी डिमांड होगी कि ऐसे जोड़े जो कि जिनकी कोई औलाद नहीं हुई उनके लिए कोई ऐसी कानून साजी हो कि अगर वो किसी गरीब से जोड़े से उसका बच्चा अडॉप्ट करना चाहे तो वो कर सकें? वो कानूनी तौर पे करे, ऐसे ना करे जैसे मैंने खता भूल की, ऐसे कोई ना करे, अल्लाह करे ऐसे किसी से ना हो। मैंने इस बच्ची को 5 दिन संभाला, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी अपनी औलाद है, मैं इसके बगैर तड़पती हूँ, नहीं रह सकती। मुस्तकबिल में कोई उम्मीद है आपको कि आपको कोई औलाद जो है आप अडॉप्ट कर लें, आपके शौहर मान जाए? अब नहीं करूँगी, अब अल्लाह मुझे अपना देगा, बस जो मैंने भूल की यही अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। सदफ, अगर ये गुमान ये कब कैसे जहन में आया कि हम जो बच्ची अल्लाह आपको और आपके शौहर को दे रहा था वो आपने सोचा कि हम ये किसी और को दे दें? क्या पहले पता लग गया था कि लड़की है? पहले पता लग गया था कि लड़की है, मगर ये कि मैं परवरिश, मैंने कहा इतनी तालीम मैं कहाँ से पूरी करूँगी, मेरा मियाँ मेहनत मजदूरी करता है, रोटी पूरी होती है। सदफ, आप मुसलमान हैं, क्या आप नहीं जानती कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह का है? इस रिज़्क़ के खौफ से आपने अपनी औलाद को ही आगे
वापस मैंने ये सोच लिया मैं क्या जिधर मुझे अल्लाह ताला 3 बच्चों का रिज़्क देता है, रोटी पानी खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो ये क्या पता है इनसे ज़्यादा अल्लाह ताला दे इनको। नाज़रीन, ये बच्चे सदफ बीवी के उनके साथ ही हैं और ये मनाजर जो आप इस वक्त कोतवाली थाना की एक ख़वातीन की लॉकअप के अंदर देख रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो तबका जो कि इस मुल्क की पॉलिसीज़ बनाता है, जो कि इस मुल्क को चलाता है, उस तबके से ताल्लुक़ रखने वाली कोई बाँच या साहिब औलाद खातून आपको इस तरह से हवालात लॉकअप में मिले। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे स्टेट रियासत बहुत सारी जगह पे अपने फ़राइज़ सरंजाम नहीं दे रही, मज़हब क्या कहता है और इस मुद्दे को, इस मसले को किस तरह से कंसीव करता है जानते हैं। ज़हीर साहब, ये बताइए कि मज़हब हमारा इस सूरत हाल के अंदर किस तरह से रहनुमाई करता है? जो ये जुर्म हुआ या फ्रॉड हुआ है, उसमें एक तरफ तो एक वो मामला है कि जो अरसा काफ़ी सालों से बे औलाद आ रही है और ये अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन वो औलाद के लिए तड़प रही थी, उसने एक बच्चे को उसकी माँ से लिया। वो जो भी तरीका है मुझे उसके बारे में नहीं है इल्म, लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि कोई शख्स अपनी औलाद को किसी दूसरे को दे दे, कस्टडी में दे दे, उसकी सुपरविजन में, गार्डियन में दे दे। लेकिन यहाँ पर जो एक अहम बात है वो ये है कि उसकी वल्दियत नहीं बदली जा सकती। यहाँ जो मेरी बहन ने किया वो ये किया कि बेटा ये बच्ची मेरे घर में पैदा हुई है। यहाँ पर क्या होना था कि इस बच्ची का नस्ब जो है वो मशकूक हो जाना था कि बेटी किसी की थी, कहीं किसी और के नाम पे जानी थी। ये जुर्म है और इसको जो है वो रोकथाम होनी चाहिए। गुलाम साहब, मुझे बताइए कि हम इस्लामी मुल्क हैं, यकीनन ये से एक इस्लामी मुआशरा है। इस्लामी मुआशरा ये कितना कमज़ोर हो चुका है कि यहाँ पे गुर्बत के हाथों तंग आकर अपने जिस्म से पैदा की हुई बेटी को एक माँ खुद जो है वो आगे दान कर रही है, सिर्फ गुर्बत के हाथों तंग आकर। पहली तो बात यह है कि यहाँ सिर्फ गुर्बत के हाथों नहीं है, असल बात यह है कि अगर बेटा होता तो ये औरत कभी ना देती। ठीक है, बेटी को हमारे मुआशरे में जाहिलियत के दौर की तरह आज भी जो है वो हकीर समझा जाता है कि बेटी होगी उसको कमाएंगे, खिलाएंगे कहाँ से, पालेंगे कहाँ से, जहेज कहाँ से देंगे, आगे शादी कहाँ करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए अफजल है, खैर खा है, या तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए खैर खा है। अल्लामा साहब, इस्लामी मुआशरे के अंदर वो कौन कौन से नफसियाती और माशी प्रेशर होंगे इस खातून के ऊपर कि इसको इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, इतना बड़ा ड्रामा करना पड़ा? आम तौर पे तो ये होता है कि बे औलाद होना ही एक औरत के लिए बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है हमारे मुआशरे में। हालांकि औलाद की तकसीम जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही एक मामला है, वो उसने अपने हाथ में रखी हुई है। यहाँ बोले मैया शाह इनासा व यहाँ बोले मैया शाह ज़ुकूर और युज़व्विज हम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मैया शाह वकीमा, जिसको चाहे बेटा दे दे, जिसको चाहे बेटी दे दे, जिसको चाहे बेटा बेटी मिला के दे दे या उसको बाँच रखे। इस्लाम एक फलाही दीन है, इसमें हर शख्स को जो है वो बराबर के हुकूक मिलते हैं। ऐसी सूरत में कि जब बच्चा जो है वो गरीब माँ बाप के घर में पैदा हुआ है और ऐसा ख़ानदान के जिनके घर में औलाद नहीं है, वो बच्चे को ले सकता है। ये हमारे कानून का अगर सुकम है तो उस सुकम को जो है वो ख़त्म करने के लिए कानून साजी करनी चाहिए और बच्चों को जो है वो किसी अच्छे घरों में देना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर जो है वो निगरानी भी होनी चाहिए, माँ बाप को मिलना भी चाहिए जो असल माँ बाप हैं। जिन्होंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, ये मामला दो ख़वातीन के दरमियान था जिसमें एक तीसरी खातून ने विटनेस बनी और सोर्स का या मिडल पर्सन का किरदार उन्होंने अदा किया और दो ख़वातीन को मिलाया, एक वो जो कि बाँझ थी और औलाद लेना चाहती थी और एक वो जिसके पास औलाद पहले से थी लेकिन गुर्बत के हाथों तंग आके वो अपनी नई होने वाली औलाद को किसी और औरत की गोद में डाल देना चाहती थी। इन दोनों की फैमिलीज़ किस तरह से इस मामले को, मसले को देख रही हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। ये वो बदकिस्मत इंसान है जिसको अल्लाह ने दुनिया में बेहतरीन रहमत यानी बेटी से नवाजा, मगर इल्म से आरी ये मुसलमान और अपनी बेटी को किसी मालदार की गोद में डाल दिया। मगर अब हमारे सामने एक मुफलिस और बेबस बाप खड़ा था जिसकी औलाद और बीवी जच्चगी की नाजुक हालत के बाद थाना कोतवाली फैसलाबाद की हवालात में बंद थी। इस हालत में इससे इसके जाहिलाना अमल पर सख्त सवाल पूछने की ख्वाहिश के बावजूद भी मेरे लहजे में तलखी ना थी। इमरान साहब, ये सारा का सारा मुकदमा है क्या? ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था? भाई दो मसलन की बेटियां से मेरी,
ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਈਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਤਾ नहीं ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। मैंने जब सुना कि वो रहीम यार खां लेके जाएगी और बाहरले मुल्क लेके जाएगी, तो मैंने कहा ये बात अच्छी नहीं है। इधर होती वो हमारी आंखों के सामने होती, हम उसे देख लेते वो कैसी है, वो कैसी मसलन के बड़ी हो के लगती है। तो हमसे ये बर्दाश्त ना हुआ, उसकी माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और इधर बीमार तकरीबन बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमने उन लोगों से मसलन के वो बच्ची उनके पाँव को हाथ लगाया कि भाई हमें बच्ची वापस दे दें, आप ही हमें बच्ची वापस दे दें, आप ही हमें बच्ची वापस दे दें। अच्छा इमरान, 40,000 के लेन देन का क्या मामला था? 20,000 रुपया जो कि अदा किया जा चुका था, 20,000 रुपया रह गया था, वो क्या था? तो उन्होंने बोला भी भाई ये आप भाजी ये आपको शिले के लिए हमने दी है, ये हमने खरीदी नहीं, ये हमने अल्लाह ताला के नाम से तुमसे ली है और तुमको दी है। हमने भी यही कहा भी तुमको हमने अल्लाह ताला के नाम पे दी है, ठीक है। लेकिन जब हमने वो मेरी बीवी की, मेरे वो तीनों बच्चे यतीम हो जाते या मसलन के सारा मेरा घर तबाह हो जाता, इस करके मैं ये सोचा भी नहीं, मैं नहीं ये बच्ची दे सकता किसी ने, किसी तौर दे उत्ते मैं नहीं ये बच्ची दे सकता। क्यों? मैं ਇਹਦਾ असल बाप हाँ, वो वालदा वा। ठीक है, साढ़े को एक गलत फैसला हो गया, उस चीज़ की असी माजरत चाहते। इमरान, माजरत आपने गलत फैसले क्यों की, लेकिन मुझे बताइएगा कि असलम साहब की बेगम उनसे 9 महीने तक एक ड्रामा करती रहीं, आपको इस ड्रामे के बारे में पता था? मुझे ड्रामे वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन ये बात है कि जब उनका फ़ोन आया तो मैंने पूछा ये क्या बात है अपनी घर वाली से, तो उसने कहा एक बे औलाद है, वो कहती है मुझे औलाद दे दो अल्लाह के नाम पे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बात कर लो, हमारे पास 2 बेटी हैं, एक बेटा है, चलो एक बेटी उनको दे देंगे। मुझे नहीं था पता कि वो अगर इमरान बेटी की बजाय बेटा होता तो फिर क्या आप ये फैसला करते जो आपने फौरी तौर पे कर लिया? शायद इस चीज़ का एहसास मुझे अब हो रहा है। क्यों? कि अगर मैं बेटा भी होता ना तो वो भी दे देता, बेटी ना देता। बेटी अल्लाह ताला दी एक रहमत है, इस चीज़ का एहसास ही मैनू हुण होया। मैनू नहीं सी पता भी उस बेटी ने मैनू इन्ना सताना, मेरी वाइफ ने इन्ना परेशान करना, मेरी वाइफ ने कोई मसला बन जाता या मर जाती, मेरे दूसरे बच्चे भी रुल जाते। आपके इस वक्त आपकी बेगम भी हवालात में हैं, आपके 3-4 बच्चे भी हवालात में हैं, आप उनसे मिले? जी मिलके बच्चों से भी मिला और अपनी माँ से भी मिला। बाप की क्या कैफियत थी जब हवालात में उसकी औलाद जो है वो रात गुजारने पे मजबूर है, उसकी वो बीवी जो अभी छिले में है, जिसने कुछ दिनों पहले एक बच्ची को जन्म दिया, वो बेचारी हवालात में रात गुजारने के लिए मजबूर है। तो एक शौहर और बाप की कैफियत क्या थी जो आपने महसूस की? सबसे गिरा हुआ इंसान, सबसे गिरा हुआ इंसान मैंने खुद अपने आप को महसूस किया। क्यों? कि मैं एक बच्ची देने जा रहा था, ये मुझे एहसास हुआ है और मैं सारी दुनिया को कह रहा हूँ कि ऐसा काम ना करें। क्यों? बच्ची अल्लाह ताला की रहमत है और बेटे भी, ठीक है। हमने ये फैसला कर तो लिया, लेकिन हम 4 दिन तक हम सोए नहीं, दोनों मियाँ बीवी जागते रहे कि यार किसी को भी ये बात पता चले कि किसी ने बच्ची भेज दी है तो क्या उस इंसान के बारे में सोचेगा कि ये कितना घटिया इंसान है जिसने अपनी बच्ची को भेज दी है। नाज़रीन, ये है वो बेबसी एक आम गरीब इंसान की, जिसमें कि वो अपनी औलाद को पालना उसके लिए मुश्किल हो चला है। हाफिज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाफिज़ साहब, मुझे बताइए इस्लाम कहाँ पे है, रियासत कहाँ पे है, और ये जो बड़ा कंफ्यूजिंग सी इस वक्त स्टेट बनी हुई है, इस स्टेज में को कन्फ्यूजन को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? हुकूमत वक्त के लिए डूब मरने का मकाम है कि उसकी रियाया जो है वो इस वक्त अपने बच्चों को बेच के अपने पेट को पाल रही है। ये 2 मरले का घर है जिसकी दीवारें जो हैं वो किस्म परसी और जो है वो इसमें 4 फैमिली जो है वो भाई बता रहे हैं 2 मरले के घर में रह रही हैं।
अमीर उल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो थे कि उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा किसी घर में पैदा होगा तो हम उस बच्चे को जो है उसके वालिदैन को वजीफ़ा देंगे दूध पिलाई का। अगर ये वजीफ़ा यहाँ पर मुकर्रर हो जाए हमारे बच्चों के लिए तो ये इस तरह के मामलात ना हों। नाज़रीन, अपनी नौयत के इस दिलचस्प केस में जो कि हाजी मोहम्मद असलम ने सऊदी अरब से आने के बाद दर्ज करवाया और जिसकी इब्तदाई तहकीकात में ही पता लग गया कि उसकी बीवी ने जाली बच्चे की पैदाइश का जो ड्रामा उसके साथ किया वो अनलीश हो गया। इस केस की अब कानूनी हैसियत क्या है और उसके पस पर्दा जो मुंदरजात हैं उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्क के मारूफ कानूनदान सैयद फरहाद शाह साहब के साथ। हाजी मोहम्मद असलम का केस आपने भी पढ़ा होगा, 363 दफ़ा 363 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ। शाह साहब, अब इस केस की स्टैंडिंग क्या है, पुलिस किस तरह से इसे टैकल करेगी? हाजी साहब की बीवी ने सिर्फ और सिर्फ बच्चा अडॉप्ट करने के लिए ये सारा का सारा ड्रामा रचा के और ये सारी कहानी चलाई थी। तो पुलिस के पास बड़ा आसान हाल यही है कि पुलिस इस FIR को झूठी होने की वजह से, बोगस होने की वजह से इसको खारिज कर। हमारा पुलिस का निज़ाम क्योंकि वो पुराना फरसूदा निज़ाम चल रहा है जिस वजह से FIR ने दर्ज होना ही होना है, चाहे वो सच्ची है चाहे वो झूठ पर मबनी। पुलिस ने पता भी चल गया कि ये झूठ पर मबनी है, रिलीफ नहीं देगी। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे कपल्स की जिनको अल्लाह ने औलाद की नेमत नहीं दी। अगर वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कानूनी क्या उसके तरीक़ाकार हैं, एक तो ये बताइएगा, और दूसरा मजहबी मामलात इसके अंदर किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे लॉ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी लॉ जब भी आप बनाएंगे तो वो इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट नहीं होगा, और अगर आपने बना दिया तो फिर इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम जो वो प्रिवेल करेंगे। तो एडॉप्शन जो है वो आपका शरई तौर पर इसको अलाउ नहीं किया गया। बच्चे ईदी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे मुख्तलिफ NGOs भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है कि आप एक तो 7 साल का उन्होंने प्रोसेस रखा है कि अगर 7 साल आपका बच्चा नहीं होता है कपल का तो फिर वो उनको एनरोल करते हैं अपनी वेटिंग लिस्ट में, फिर वो वेटिंग लिस्ट में टाइम लगता है। तो इसलिए लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं क्योंकि हम लोग पैसे की बुनियाद पे हर चीज़ ख़रीदना चाहते हैं। हमारे पास कई केसेस इस किस्म के आए, हमने खुद इस किस्म के केसेस किए भी हैं, देखे भी हैं कि बच्चा दिया एक फैमिली ने, दूसरी फैमिली ने लिया, बच्चा पाला, बच्चा बड़ा हो गया, बाद में रियल पेरेंट्स जो थे वो आ गए, उन्होंने आके अपना हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की कि जी हमारा बच्चा तो इनके पास नाजायज़ ना रखा, हमें बच्चा दिया जाए। तो फिर कोर्ट्स ने क्या किया, क्योंकि प्रॉपर लॉ हमारे पास नहीं है कि कौन प्रिवेल करेगा, तो उन्होंने फिर क्या किया, बच्चे से मर्जी पूछी। बच्चे की हमारा जितना भी गार्डियन से मुतल्लिक लॉ है उसमें सबसे बेसिक चीज़ जो है वो बच्चों का इंटरेस्ट है। उन्होंने देखा कि एक बच्चा आंख खोलते ही एक पेरेंट्स के पास आ गया, चाहे वो गलत रास्ते से आया, लेकिन वो अब 14 साल 13 साल बच्चा उनके पास पला है, उसके लिए असली माँ और असली बाप वो हैं। तो उस सीक्वेंस में फिर उन्होंने कई फैसला जात हमारी आला अदलिया की यही है कि उन्होंने अडॉप्टेड जो पेरेंट्स थे उनको दे दिया, कई केसेस में ऐसा हुआ कि उन्होंने जो ओरिजिनल पेरेंट्स थे उनको वापस कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो एक सवालिया निशान है वो ये है कि लेजिस्लेशन इस मामलात में होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही हमारी शरीयत की आ जाती है। शाह साहब, जैसे आए रोज़ हम ये खबरें अखबारात में पढ़ते भी हैं, TV पे देखते भी हैं, बच्चों की चोरी होना और बच्चों की तिजारत के जो जराइम हैं, वाक़यात उनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई कानून है जो कि बच्चों की इस तिजारत को रोक सके? ये 363 जो आपने अभी हाजी असलम वाले केस की बात की, 363 यही है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर अगवा किया जाएगा और उसके बाद उसको फ़रोख्त करने के लिए, मकसद कोई भी है लेकिन उसको अगवा किया जाना खुद एक जुर्म है जो 363 में फॉल करता है PPC में। और प्रॉब्लम सिर्फ हमारी ये होती है कि बच्चा मिलने के बाद पेरेंट्स को इतना प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो जाके कोर्ट्स में कह देते हैं कि जनाब हमें गलत फहमी हो गई थी और हमने FIR दर्ज करा दी थी, हमारा बच्चा हमारे पास ही था, हमें मिल गया। थाना कोतवाली फैसलाबाद में हमने एक गरीब माँ की दास्तान आपको सुनाई जिसने अपनी गुर्बत के हाथों तंग आकर अपने जिस्म से पैदा की हुई अपनी बच्ची किसी और की झोली में डाल दी।
लेकिन महज 4 रोज़ में उसकी ममता ने उसकी औलाद को वापस छीनने पे मजबूर कर दिया। ख़वातीन और हज़रात, हमारी रूलिंग एलीट को सोचना होगा कि ये गरीबों का मुंह चढ़ाती गुर्बत कहीं गरीबों को उस दहाने पे ना ले आए जहाँ पे इंसानों के बच्चों का जुमा बाजार लगे और ना सिर्फ इंसानों के बच्चे बिकें बल्कि इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त भी यहाँ पे सरेआम हो जाए। हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को सोचना होगा कि गरीब को इज़्ज़त की रोटी और इज़्ज़त देना उनका फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी है या नहीं, हम लोगों को सोचना पड़ेगा। मेज़बान अहमद इमरान खान को हम लोग की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।